Hello class 12 students, welcome to the DabHand Learners channel. This is the MCQ series of Marketing Management part 2. So we will discuss some questions now MCQ series wale. Then we will move on to the term 2 syllabus that is staffing chapter. क्योंकि term 2 syllabus भी March तक हमें cover करना है. So we will have to get through with all the term 2 chapters. So first of all पहले हम ये discuss कर लेते हैं. So question number 11 says marketing is called a dash process because it involves interaction of buyers and sellers. So it is an economic process, social process, legal process or political process. Which process is this? So the answer is social process because there is an interaction of buyers and sellers. Sellers and buyers come in contact with each other, right? So that's why the answer will be social process. So which option is this? B option. B option is correct. Now question number 12. Dash is the marketing function which is concerned with informing the customers about the firm's products, transportation, selling, advertising or public relations. Think and tell what would be the answer. वी नो कि देखो यहाँ पे इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स की बात की हुई है तो इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स मींस प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स में वी हैव फोर ऑप्शंस एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन एंड वन मोर दैट इज पर्सनल सेलिंग बट अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग तो ऑब्वियसली क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो है नहीं एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में से कौन सा पब्लिक रिलेशंस के लिए इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक वर्ड बताया था दैट इज इमेज रेप्यूटेशन गुडविल बट देर इज नो सच वर्ड इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्फॉर्मिंग द कस्टमर सो कस्टमर को इन्फॉर्म कौन करता है एडवर्टाइजिंग अच्छे से करता है पब्लिक रिलेशंस ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग तो सी ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज एडवर्टाइजिंग registering a trademark gives to the users finance, fame, protection, information. Which one of this is correct? So we know trademark हमें क्या करता है protection देता है protection against its use protection against its use by the firm like अगर मैंने अपने प्रोडक्ट पे एक ट्रेडमार्क दे दिया देन उसे कोई भी दूसरी फर्म यूज नहीं कर सकती सो द आंसर इज सी दैट इज प्रोटेक्शन क्योंकि फेम इंफॉर्मेशन फाइनेंस के लिए और भी ऑप्शंस हैं जैसा मेरा एक ब्रांड है और मैंने उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड मार्क दे दिया तो वो एक फेम हो सकता है ठीक है और फिर इंफॉर्मेशन के लिए हमारा होएगा ब्रांड नेम ठीक है तो ऐसी और फाइनेंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं तो लेकिन ट्रेडमार्क जो है ना वो हमें प्रोटेक्शन देने के हेल्प करता है बाकी चीज़ें दूसरी चीज़ों के लिए जैसे कि फेम फाइनेंस इंफॉर्मेशन ये सब प्रोवाइड करती है लेकिन प्रोटेक्शन सिर्फ हमें ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है क्वेश्चन नंबर 14 दिस इज अ केस स्टडी Within 2 years of its inception, Bhavishya Limited has created a very positive reputation about itself and its products in the eyes of the general public by participating extensively in various social welfare programs. Identify the component of promotion mixing described in the given lines. जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा इसी एमसीक्यू सीरीज मार्केटिंग चैप्टर का they would definitely know in चारों options में से which one would be correct. So the answer is nothing but other than public relation C option because part 1 के अलावा मैंने अभी भी आपको बताया था कि there is a keyword positive reputation. Whenever there is a word reputation, image, goodwill, so the answer is public relations. Okay. Question number 15. Under which of the following conditions does a business need not maintain high level of inventory? इसमें से किस कंडीशन में से बिजनेस को हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है when higher level of customer services need to be provided when high degree of accurate sales forecast can be made
when the responsiveness of the distribution system is low, or all of the above. So think and tell. इन दिस क्वेश्चन आंसर तो वैसे बी ऑप्शन है कि जब एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट होते हैं कि इतनी सेल्स ही होगी, ये एक्यूरेटली हमें पता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सो देयर इज अ नीड नॉट टू मेंटेन इन्वेंट्री, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री बनाने की फिर नीड नहीं होती है. सो द आंसर इज बी. बट इफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड, प्लीज डोंट कंसीडर इट. Question number 16. Hina is planning to set up a small manufacturing unit for manufacturing eco-friendly packaging material. She has decided to market her products through the conventional channel of distribution, which involves wholesalers and retailers. Identify the channel of distribution being adopted by the company. तो यहाँ पे अगर हीना खुद मैन्युफैक्चरर है और उसने कहा है कि वो एक कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगी जिसके अंदर होलसेलर और रिटेलर होंगे, सो इसका आंसर देन टू लेवल चैनल ही होगा, सी ऑप्शन. क्योंकि हीना खुद मैन्युफैक्चरर है एंड शी सेड कि वो होलसेलर और रिटेलर्स को इंक्लूड करेगी. एंड कन्वेंशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा है, इट मीन्स कॉमन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमनली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका आंसर वैसे सी ऑप्शन है, बट आई थिंक ये सिलेबस में से डिलीटेड है. क्वेश्चन नंबर 17. Kanu has decided to sell her range of organic food products through her own retail outlets. Identify the channel of distribution being adopted by the company. सो इसका आंसर तो ऑब्वियसली जीरो लेवल चैनल है, क्योंकि अगर कन्नू खुद मैन्युफैक्चरर है और वो अपनी रिटेल शॉप से बेचना चाह रही है गुड्स को, सो इसका आंसर जीरो लेवल चैनल है. 18th question. Under which of the following situation is a company not likely to fix a lower price for its product? किस सिचुएशन में कंपनी लोअर प्राइस प्रोडक्ट का लोअर प्राइस फिक्स करना नहीं चाहती है? When the competition has introduced a substitute product, if the demand for a product is inelastic, when the company wants to attain market share leadership, and when the demand for the product is low. So इस क्वेश्चन में इसका आंसर है बी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्योंकि देखो ए कंपटीशन सॉरी ए ऑप्शन में लिखा है कि कॉम्पिटिटर ने एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है. अब अगर मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर है तो हमें अपना प्राइस पे थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी मोनोपोली होती तो हम हायर प्राइस रख सकते थे क्योंकि सारे कस्टमर्स फिर हमारे ही होते. लेकिन अब कॉम्पिटिटर है, उसने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दिया है, तो उसकी वजह से अब हमें अपने प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स हमारे पास भी आए, वरना कॉम्पिटिटर है सारी कस्टमर्स को हमारे ले जाएगा. तो इस केस में तो लोअर प्राइस फिक्स होगा नहीं, मतलब लोअर प्राइस फिक्स होगा अगर कॉम्पिटिटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हायर प्राइस. यहाँ पे लिखा है नॉट लाइकली टू फिक्स अ लोअर प्राइस, इसका मतलब हमें कैसा प्राइस चाहिए, हायर प्राइस. तो अगर कंपटीशन है तो क्या हायर प्राइस होगा, नहीं, फिर हम लोअर प्राइस सेट करेंगे. नेक्स्ट इज व्हेन द कंपनी वांट्स टू अटेन मार्केट शेयर लीडरशिप. सी ऑप्शन देखो, अगर कंपनी को मार्केट शेयर लीडरशिप चाहिए, मार्केट में अपना हाईएस्ट शेयर चाहिए लीडरशिप का, देन क्या कंपनी क्या करेगी, अपना प्राइस लो कर देगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके पास आए. बट यहाँ पे हायर प्राइस तो वो सेट नहीं कर पाएगी अगर उसे मार्केट शेयर चाहिए तो इस केस में भी ये आंसर नहीं होगा. और जब डिमांड ही प्रोडक्ट की कम है तो प्राइस तो कम होगा ही. सो आंसर यहाँ पे होगा डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक. क्योंकि देखो जब डिमांड जो है प्रोडक्ट की इन इलास्टिक होती है, जैसे कि आप कह सकते हो जो आपकी मैथ स्टिक्स का बॉक्स होता है, मैथ स्टिक्स, तो उनका जो बॉक्स होता है वो अगर थोड़े 1 रुपए या 2 रुपए से बढ़ भी जाए, इट इफ इट विल इंक्रीज बाय 1 रुपी और 2 रुपी, तो क्या आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा, नो क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक. सो उसकी डिमांड अगर इन इलास्टिक है और उसके राइज इन प्राइस से आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें हायर प्राइस फिक्स कर सकते हो. मतलब अगर आप एक साल मतलब 5 रुपीज का भी बॉक्स आता था लेकिन अब वो आपने 10 रुपीज का कर दिया, तो कस्टमर्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. अ सेल्समैन ऑफ अ कंपनी डीलिंग इन पेट फूड इज पेड अ फिक्स सैलरी ऑफ 20,000 per month and furthermore 20 extra per unit of the product sold beyond the target sales. Identify the type of cost being described in the given example. In this question ये कुछ कम स्टूडेंट्स को ही पता चलेगा बिकॉज इट
इट इज़ नॉट रिटन इन द बुक इन डिटेल, ये एक बॉक्स में होता है। तो मैं तीनों एक बार कॉस्ट का डेफिनेशन बता देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी से वेरी नहीं करती हैं। मतलब जैसे फिक्स्ड कॉस्ट में आपका आ गया फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी, रेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रहती हैं फिक्स्ड। चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, फर्क नहीं पड़ता, आपको सैलरी या रेंट देना ही पड़ेगा। तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जिनका लेवल ऑफ एक्टिविटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि रॉ मटेरियल कह दो आप, पावर कह दो, लेबर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रोडक्शन से लिंक्ड होती है। लाइक अगर प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल, पावर, लेबर तीनों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जो होती हैं ये प्रोडक्शन के साथ हमें जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये तीनों भी बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई दे आर वेरिएबल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्शन, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट है। और लास्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एसवीसी लिख देता हूँ इसे मैं। ये वो कॉस्ट होती है जिनका लेवल ऑफ एक्टिविटी से तो फर्क पड़ता है बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी थी? जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से इन्हें फर्क पड़ता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इन्हें लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ तो ये वेरी करती है, वेरिएबल है तो वेरी तो करेंगी ही, बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए आप इसी क्वेश्चन में देखो, ये इसका आंसर सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि एक सेल्समैन है, इज पेड अ फिक्स सैलरी ऑफ 20,000, 20,000 की उसे फिक्स सैलरी मिल रही है। लाइक पहले मेरे को लगाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। तो वो देखते हैं। एंड फर्दर मोर 20 एक्स्ट्रा पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बियॉन्ड द टारगेट सेल्स। जितना टारगेट सोचा था उससे 20 एक्स्ट्रा यूनिट ही प्रोड्यूस हुई और सोल्ड हो गई हैं। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट। तो एक बात बताओ कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसके अंदर सैलरी तो आती ही होगी, क्योंकि हमें पता है सैलरी जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके लेबर्स को सैलरी हमें देनी पड़ेगी, और सैलरी के साथ साथ हमें वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा, हमें वहाँ की पावर भी चाहिए, सारे रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। तो ये सारे जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। बट ये इसका आंसर है दैट दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं। फर्दर मोर 20 एक्स्ट्रा पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड बियॉन्ड द टारगेट सेल। अब बताओ टारगेट सेल से ज्यादा प्रोडक्ट उसने सोल्ड कर दिया इस महीने में, तो क्या आपको लगता है कि उसने ज्यादा टारगेट कर दिया तो उसके लिए उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी? नो, बिकॉज द सैलरी इज फिक्स्ड, it is not in direct proportion. So that's why the answer is C option, semi variable cost. 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये 19 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया समझ तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 20 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबलिंग बीइंग डिपिक्टेड बिलो एज गिवन ऑन द पैक ऑफ चिप्स। बट इस तरह के क्वेश्चन आना मुश्किल है कि पिक्चर आएगी उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसी आ सकती है पिक्चर। लाइक डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट में आपके पास लेबल में प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर आ जाएगा, उसके एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कैसे कैसे उसे यूज करना है, एमआरपी, रिटेल प्राइस, नेट वेट, आपके पास ये सब आएगा उसमें। देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में आपके पास क्लासिफिकेशन आएगा। जैसे कई बार होता है कि क्लासीफाई कर देते हैं, लाइक हमारे पास एक प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क और उसमें भी बहुत सारे हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, हम उनकी ग्रेडिंग करते हैं, डेयरी मिल्क सिल्क और डेयरी मिल्क बबल, कुछ टाइप ऐसे होते हैं। सो दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो ऐसे हम ग्रेडिंग करते हैं उनकी। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स में आपके पास आ सकता टैग लाइन्स वगैरह जो आती है आपकी प्रोडक्ट के। आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखना टीवी में, उसके आगे प्रोडक्ट के नीचे एक टैग लाइन होगी जिन्हें वो प्रोनाउंस भी करेंगे एडवर्टीजमेंट में। तो अगर ये सब मैसेजेस होते हैं, टैग लाइन्स होती हैं, तो ये सब आती है आपके प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट में। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड में आपका कलर हो सकता है,
लेबल का साइज हो सकता है एंड उसकी डिज़ाइन हो सकती है। लाइक हमें कैडबरी के लेबल से ही पता चल जाता है कि वो कैडबरी का प्रोडक्ट है। ओके, सो ऐसी ही चीज़ें आपको एक पिक्चर में आ सकती है, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आना इज कम कम चांसेस हैं, लो चांसेस आर देयर, बट स्टिल आप तैयारी कर लेना, मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए एंड इफ यू आर वेल इन दैट सो यू कैन इजीली क्रैक द बिजनेस पेपर एग्जाम। सो आज के लिए बस इतना ही। मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यू सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया एंड इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन so you will get notified every time. Follow my Instagram link for participating in the quiz of the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.